I've secured All India Rank 13 in Engineering Service Examination 2018 batch. So right now I'm serving in IRSC, Indian Railway Services for Engineers. So this session is mainly for those people जो अभी they are aspiring for Engineering Service Examination. First of all, I'll tell you about myself. I passed out from my BTech in 2016 and from BIT Jhansi. Then I decided कि यार एक बार कोचिंग करनी चाहिए because in college everyone knows कि हम कितना पढ़ते हैं. So I went to Delhi and I joined IAS Masters coaching and I tried to clear all the concepts. And in coaching the one thing that I didn't do was कि मैं कभी backlog create नहीं करता था. जितना भी they give us the work the coaching में जितना भी वो पढ़ाते थे I used to revise it. And जितने भी booklets में questions थे I used to do it religiously and honestly. Then I'll tell you about I first gave this examination in 2017, where I was there were a lot of thoughts कि I used to feel negative कि यार इतने सारे लोग देते हैं पेपर, मेरा कब कैसे होगा, how I will get selected. So I used to talk to Kanchan sir about this and he used to tell me कि बेटा देखो अगर एक सीट भी है तब भी तुम्हें मिलेगी अगर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इफ़ यू हैव डन योर प्रिपरेशन रिलीजियसली तो वो सीट भी तुम्हारी होगी. सो आई यूज्ड टू बी पॉजिटिव अबाउट इट. बस मैं पढ़ता गया और प्रीलिम्स दिया. आई गॉट सेलेक्टेड. आई गॉट अराउंड 230 मार्क्स इन द प्रीलिम्स in my first attempt and that was a good marks. ठीक है. Then I prepared for mains. I was very good in the mains actually. I used to get under 10 rank in the test series. But the one mistake that I have done during mains preparation was that I used to attempt the compulsory questions first. Like now question number 1 and question number 5 of a mains paper, I used to do that. So it's not, you are not, if you are not lucky enough कि असली in mains paper वो question अगर easy नहीं आए then तुम्हारा पेपर बिगड़ जाएगा. मेरे साथ यही हुआ था इन टेस्ट सीरीज. आई यूज़ टू गेट इजी क्वेश्चन इन द कंपलसरी क्वेश्चंस. तो मैं वो पहले अटैम्प्ट करता था, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था एंड आई यूज़ टू गेट गुड मार्क्स. बट इन द रियल पेपर दोज क्वेश्चंस वर वेरी टफ. मेरा पेपर एकदम बिगड़ गया था मेंस का. बट फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था मेंस में. देन इंटरव्यू भी दिया बट इन द फाइनल लिस्ट आई डिडंट गेट सेलेक्टेड. आई स्टिल रिमेंबर द डेट. इट वाज 11th of September 2018. रिजल्ट आया था. आई डिडंट गेट सेलेक्टेड एंड सो इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. मैं घर पर था, मैंने अपने मम्मी पापा का चेहरा देखा. दैट वाज दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड. देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, इस रास्ते से मैं एक बार आ चुका हूँ तो मैं एक बार फिर से आऊँगा. इट विल बी वेरी इजी फॉर मी कि मेरे को फिर से एक बार प्रिपेयर करना है, मैं कर सकता हूँ फिर से. तो उसी रात आई वेंट आउटसाइड एंड आई बॉट सम स्टेशनरीज लाइक पेन एंड रजिस्टर्स. स्टडी टेबल भी नहीं थी तो वो लेके आया था. उसी रात मैं सोम की बुक खोली, स्टार्ट किया पढ़ना फिर से. तो मैं एकदम आउटबर्स्ट हो गया था, लाइक आंसू आने लग गए थे. आई स्टार्ट क्राइंग. देन विद टाइम मैं फिर से फ्लो में आ गया था फॉर द प्रिपरेशन. देन अगेन इन द 2018 I attempted and I got really good marks in prelims. I was confident enough but still I was एक बार क्या होता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है. तो मेरे साथ भी वही था. मैं अपने मार्क्स अंडर एस्टिमेट करता रहता था हमेशा कि नहीं यार 30-40 मार्क कम ही रखो. सो मेंस भी मैंने इसी तरीके से दिया था. So this is how I got selected, and when you get your name in the list, that feeling is out of the world. When you see the tears of joy in your parents' eyes, you believe me, that is the biggest thing that you can give them. So now let's come to the examination. Let's comes to the prelims. So in prelims, I would like to tell you about some things that I have experienced. So previous year is the bible for this prelims examination. ठीक है. First go through the previous year. You have studied every subject. Then previous is must. Then first prepare a list of the subject you need to cover. Okay. Then assign each subject a period of time in which you think you can complete that subject, along with all the conventional questions that have been asked till date in ESE. For example, मैं ऐसे करता था, लाइक मैं एक शेड्यूल बनाता था. सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील ऐसे बना लिया. उसको मैं टाइम अलॉट कर देता था, लाइक 3 to 4 days फॉर सोम,
और उन 3-4 दिन में मुझे क्या करना है, मैं अपने क्लास नोट्स अच्छे से पूरे रीड करूँगा। क्लास नोट्स में जितने भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं वो पूरे करूँगा। देन प्रीवियस ईयर में सोम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद बुकलेट के जो क्वेश्चन, ये क्या होता है जब एंड टाइम पे 10 दिन पहले एग्ज़ाम के तुम सारे सब्जेक्ट्स को खोल के नहीं पढ़ोगे ना, तो शॉर्ट नोट्स में तुम लोग अपने फॉर्मूलेज और वो चीज़ें लिखोगे जो तुम भूल जाते हो। ओके, और कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस में एक अलग अप्रोच लगती है, तो वो चीज़ें हम उसमें लिखते हैं सो दैट यू कैन रिवाइज इट एट द एंड। ओके, दिस इज़ हाउ यू शुड डू द शेड्यूलिंग। और हर एक सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट कर लेना। प्रीवियस ईयर इज़ वेरी मस्ट, एटलीस्ट 2 से 3 बार तुम कंप्लीट कर लो एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज रिपीटेटिव होता है एग्ज़ाम, इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एंड बिलीव मी, जो प्रीलिम्स होता है वो तुम्हारी विड्थ ऑफ नॉलेज टेस्ट करता है। जितना ज़्यादा तुम कवर करोगे उतना ही तुम बेटर प्रिपेयर करोगे प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज यू नेवर नो, यूपीएससी वेरी अनप्रडिक्टेबल, कब वो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा प्रेफर कर लें। समटाइम्स ये हाइड्रोलिक मशीन से ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी सॉइल से ज़्यादा पूछ लेते हैं, अभी आरसीसी, कभी अब तो पर्ट सी भी हम ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो यू नेवर नो, तो सारे सब्जेक्ट्स पूरे करना। ओके, देन लेट्स कम टू यू नो मेंस। आफ्टर प्रीलिम्स, मेंस टेस्ट योर डेप्थ ऑफ द नॉलेज। ओके, डेप्थ ऑफ द नॉलेज कब अच्छी होगी, जब तुम हर एक क्वेश्चन अच्छे से अपने आप करोगे, लाइक यू आर नॉट कॉपिंग फ्रॉम द सॉल्यूशंस। So one of the best strategy to do this is like again शेड्यूलिंग करो। अगेन अपने हर सब्जेक्ट को लिखो, उसको टाइम दो कि इतने दिन में मुझे ये करना है, उसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, बुकलेट के एंड योर नोट्स के सारे क्वेश्चंस खुद से करो। कैसे करना है, ऑनेस्टली करना है, लाइक क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, उसको कवर कर लो सोल्यूशन को, एंड उस पर खुद से अपने आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग इट योर सेल्फ यू विल फाइंड द रेजिस्टेंस। तुम्हें पता चलेगा यार मेरे से नहीं हो रहा है, बिकॉज यू नो कि इसका आंसर ऐसे आएगा, बट तुम नहीं कर पाओगे उसे। तो दिस इज़ वॉट यू नीड टू लर्न, ये प्रैक्टिस से ही पूरा होगा। ओके, तो उसको कवर करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस मेंस एग्जाम, बिकॉज समटाइम्स people I have talked to a lot of friends, they tell me कि मेरा आंसर तो सही था, नंबर ही नहीं मिले यार। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मस्ट इन दिस, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तुम अपने अजम्पशंस लिखो उसमें। ठीक है, एंड थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ऑल्सो। थ्योरी को तुम बार बार करो, थ्योरी वाले क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, लाइक बीएमसी में तो मोस्टली रिपीट ही होते हैं, तो उसके क्वेश्चन बार बार देख के लिखो, उसे जितनी बार लिख सकते हो लिखो। ठीक है, तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, ये तुम्हें मेरे ख्याल से पूरा सब्जेक्ट 13 सब्जेक्ट्स होते हैं सिविल के, वो पूरे कवर करने में अराउंड 1.5 मंथ लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक विशाल पब्लिकेशन की छोटी सी बुकलेट आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो उसे तुम 9 से 12, 2 से 5 रोज़ एक एक पेपर लगाओ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 9 से 12, 2 से 5 तुम्हें अपनी बॉडी को ढालना है कि तुम्हें इस टाइम में यू हैव टू बी ऑन द डेस्क, पेन चलाते रहना है, दिमाग चलते रहना है, और नॉट इन अ एसी एनवायरनमेंट। तुम्हें गर्मी में लाइक पंखा चल रहा है, पंखे में बैठ के करना है, एक डेस्क है, तुम्हारी कॉपी है, पेन है, कैलकुलेटर है, दैट्स ऑल। इस तरह से तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी 9 से 12, 2 से 5 में। तो यू विल गेट यूज टू दिस एनवायरनमेंट। तुम्हें एग्ज़ाम देने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज ड्यूरिंग दैट डे, ये कब होता है, जून में होता है मेंस का पेपर, जून एंड और जुलाई स्टार्टिंग। बहुत गर्मी होती है, मैं आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव एग्जामिनेशन, पसीने टपक रहे होता है। कई बार तो सेंटर्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे लाइट चली जाती है। सो दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू कि ट्राई टू डू दिस। विशाल पब्लिकेशन इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर दिस एग्जामिनेशन। हर एक दिन अलग अलग क्वेश्चंस लगाओ, इससे क्या होता है, तुम्हें क्या होगा कि एक सिमुलेशन मिल जाएगा एग्जामिनेशन का, कि यू आर डूइंग द एग्ज़ाम, ऑनेस्टली देना इसे, और तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। ओके, तो इसे टाइम लिमिट में कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो दिस इज़ हाउ यू शुड डू द विशाल पब्लिकेशन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना, भले ही ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। मैंने अपनी ऑनलाइन ज्वाइन करी थी व्हेन आई वाज गिविंग 2018 एग्ज़ाम। तो उसमें क्या था कि यू विल गेट न्यू क्वेश्चंस आर वेरी नेसेसरी। अब तुम एक ही चीज़ बार बार कर करके यू आर नॉट गोइंग टू गेट इम्प्रूव्ड। नए क्वेश्चंस करोगे देन यू विल टेस्ट योर सेल्फ।
तो IAS मास्टर, मेडिसी, जो भी है, जितनी भी कोचिंग है, ज्वाइन कर लो, क्वेश्चंस देख लो एटलीस्ट, उनके टाइप ऑफ सोल्यूशंस देख लो कैसे हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ यूल गेट न्यू क्वेश्चंस। इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम है तब जाके तुम सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस देख सकते हो, अदरवाइज आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू गो फॉर सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस, बिकॉज दोज आर वेरी काइंड ऑफ अ डिफरेंट लाइन। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बट आई हैव सम फ्रेंड्स जो बोलते थे मैंने वो भी किया है सिविल सर्विसेज के, बट ओनली व्हेन यू हैव टाइम, ओके, ओनली व्हेन यू आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज नो नीड टू गेट बॉदर्ड अबाउट इट. Last thing I would like to tell you about mains. In mains, the marking scheme is kind of different. First time when I gave the exam in 2017, I made some mistakes while calculating my marks in mains. मैंने क्या किया था, लाइक जहाँ मेरा आंसर गलत था बट स्टेप्स थोड़े सही थे, आई यूज़ टू गिव माई सेल्फ सम मार्क्स, लाइक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं उसमें 10 मार्क्स दे देता था अगर आंसर गलत है, और थ्योरी में 60-70% दे देता था. तो दिस इज़ हाउ आई ओवर एस्टिमेटेड माई मार्क्स. तो ये नहीं करना, कभी नहीं करना, बिकॉज इसका घाटा तुम्हें ही होना है. एंड में रिजल्ट नहीं आएगा, यू विल फील वेरी बैड. सो ट्राई टू अंडर एस्टिमेट योर मार्क्स एंड द राइट स्कीम इज़, दिस टाइम मैंने कैलकुलेट किए थे 400 मार्क्स और मेरे एग्जैक्ट 400 ही आए मीन्स में. तो UPSC follows this marking scheme, like if your answer is correct in numerical questions then they will give you full marks. For example, answer is correct, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स दे देंगे. थ्योरी में 50% मार्क्स, इससे ज़्यादा लगाओ ही मत. 50% मार्क्स, जितना भी तुम अच्छे से लिख के आए हो थ्योरी वाली क्वेश्चन में 50% मार्क्स ही दो अपने आप को. दिस इज हाउ. और अगर आंसर गलत है तो ज़ीरो, नॉट मोर देन ज़ीरो. ओके, ऐसे अपने क्वेश्चंस, अपने जो कि आंसर सोल्यूशंस के जो आंसर्स हैं उनको ऐसे मार्किंग देनी है और अपने अपने आप को एक्सेस करना है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू गेट एन आइडिया कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा. ठीक है. तो आफ्टर अटेम्प्टिंग मेंस अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे करना है. देखिए, मेंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी कभी ये मत करना कि कंपलसरी मुझे पहले करना है. ट्राई टू फाइंड द क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट. ओके, उससे सबसे पहले करना. उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड यू विल गेट मोर पॉजिटिव एनर्जी की आगे और क्वेश्चन है वो तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा कि नहीं यार, तो ये भी कर सकता हूँ. पहला क्वेश्चन ही तुमने ऐसा पकड़ लिया कि जो तुमसे नहीं बन रहा, तो पेपर बिगड़ जाएगा. ठीक है. तो ट्राई टू फाइंड द क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट. कंपलसरी एंड में रख दो, वो तो करना ही है ना. तो दिस इज हाउ यू शुड डू द मेंस. एंड आई थिंक दिस इज आई नीड टू टेल यू. एंड राइट नाउ लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, सो I wish everyone is safe, and the people who are preparing for engineering services means उनके लिए तो कुछ चेंज नहीं हुआ. दे आर जस्ट, उनको तो पढ़ना ही है यार, पढ़ते रहो, है ना. एंड द पीपल हु आर इन कॉलेज एंड दे आर प्लानिंग, तो क्या तुम्हें करना है, स्ट्रैटेजी प्लान कर लो कैसे कर. कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, ये सब तुम देख सकते हो. एंड okay, there's a comment from Prakash that few lines for motivation regarding preparation time. Yeah. So when I didn't get selected, I used to cry a lot sometimes. जब मैंने, okay, I'm telling you. So I used to get tears in my eyes when I was preparing again. Okay, तो उसको कैसे तुम्हें cope up करना है. Try to find the motivation, तुम ये पेपर क्यों दे रहे हो. Okay, I was giving this examination so that I can achieve something in my life and I can make my parents proud. तो मेरा मोटिवेशन मेरे साथ ही था. आई वॉज एट माई होम, मेरे पेरेंट्स थे साथ में. आई यूज़ टू टॉक टू देम कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है. आई यूज़ टू गेट डिप्रेस्ड. मेरे को रात में नाइट मेयर्स आते थे. मेरे को लगता था कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है. मैं एकदम चिल्लाते हुए उठता था रात में. सो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ आती हैं. द वे हाउ यू आर डीलिंग इट मैटर्स. ओके, तो ट्राई टू फाइंड द मोटिवेशन एंड उस मोटिवेशन से पॉजिटिव एनर्जी ड्रॉ करो कि नहीं यार, मेरे को करना है. एक सीट भी है तो वो मेरी है. ट्राई टू फील लाइक दिस. ओके, सेटबैक्स आएंगे, इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ सेटबैक. ओके, तुम उसे ओवरकम कर लोगे. बिलीव इन योर सेल्फ. बाकी जितनी भी सीट है, मेरे पास बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि ओके, वेट आई एम टेलिंग यू. मेरे पास बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर रेलवे ने सीट हटा ली है, तो सीट ही नहीं बची, हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा. जो भी ऐसा बोल रहे हैं यार, तुम लोग बहाना मार रहे हो पेपर ना देने का. एक भी सीट है, तुम लोग उसके लिए फ़ाइट करो. रेलवे ने सीट हटाई तो क्या हो गया, और भी डिपार्टमेंट्स हैं यार, है ना. एंड रिगार्डिंग योर ऑफिसर क्वालिटी, अगेन फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग ऑफिसर क्वालिटी. सो प्रकाश, ऑफिसर क्वालिटी इज़ नॉट लाइक इट्स इनबिल्ट, टाइम के साथ आती है, कोई लेके पैदा नहीं होता.
एंड ऑफिसर क्वालिटी तुम जैसे ही बन जाओगे ना, ऑफिसर अपने आप ही आ जाएंगे. ओके, so there's nothing to worry about that. You just focus on your preparation, and this is all I need to tell you. Any questions, if you guys are having, you can comment. I'll try to answer it. Otherwise, I'll finish the session. I don't think there's many people live right now. Okay, so thank you Free Academy for this opportunity, and I hope everyone will do good in the future. All the best, everyone. Bye.